Prathamesh cracked 10 LP as a Power BI developer, literally. So I'm more interested कि प्रथमेश ने कैसे ये क्रैक किया, ये 10 लाख निकाला है, तो क्या कैसा नेगोशिएशन था? I started, applying again, and I also added Claude in my project, second project. So that helped me give an edge. The SQL part is too vast. Power BI part is too vast because it is a major portion holder in any. I feel ये धीरे-धीरे पहाड़ बन जाता है. Okay, so basically I was a little consistent from starting only because you can see अगर आज आपको पढ़ा है, so I was like आज ही करना है. ज़्यादा डिले हो गया तो yes, जैसे आपने बोला वो पहाड़ बनते जाता है. Prathamesh, so अपन स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू राइज. थैंक यू सो मच ऑल. यू गाइज आर लाइक शॉर्ट नोटिस पे सभी आ गए और हमें ना आज प्रथमेश के बारे में जानना है. इट इज लाइक प्रथमेश क्रैक 10 LP एज अ पावर बीआई डेवलपर, लिटरली. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि प्रथमेश ने कैसे ये क्रैक किया, ये 10 लाख निकाला है, तो क्या कैसा नेगोशिएशन था, देन साथ में हाउ वाज द इंटरव्यू फ्लो, उनका जर्नी कैसा था, और क्या इज इट पॉसिबल कि मार्केट में 10 लाख 12 लाख रुपए दे रहे हैं. ठीक है. हाँ, अगर हम फ्रेशर जाते तो उनको कितना मिलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस जाते तो कितना मिलता है. सो आई एम टू मच इंटरेस्टेड टू नो योर जर्नी. सो प्लीज प्रथमेश, आप बताओ कि हाउ वाज योर जर्नी विथ राइज आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन, क्या स्टोरी था, और हाउ डू व्हाई यू चूज राइज लाइक ओवर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस. प्लीज कंटिन्यू. Sure. Thank you, sir. Basically, sir, I've completed my MBA in operations. So after that, I worked for 2.5 years in this operations field, and also I was involved in some of analytics, tasks as well. So that's how my intrigue in this field began. I used to work on Excel only first of all. Then I wanted to expand more in this field, so I started reaching my connections. Where one of my major connections was Kalpesh Nardekar, who was also associated with this institute 1 year or somewhere back. So he, informed me about Rise Institute, what they offer and all. So I connected with you. You explained me about, what are the tools that we, teach here, and what are services we provide, what profiles I can apply to, what is the timeline of this, you can say, course, and how we build your profile. So I was really impressed with that, and I sat for some demo sessions, and I enrolled in this Rise Institute. So I think it was one of the best decisions that I have made till now. So yeah, I love the way it's structured, the lectures that we have, daily lectures, and then for practice we have been given various practice files as well to daily. Then we have been told, we can also practice SQL on HackerRank. So many mediums are also provided different year. Vaishnavi ma'am has been very helpful to provide time to time all the solutions that we need, if it's in notes or anything. Then I love how the mock is presented here, how gradually it starts from basic and how it goes to advanced level. So it really built my confidence and helped me go into the market and cracked the current job. It was like after graduation, you how much time it will take to clear? Like it was been 7 months you enrolled. So Correct. what was the most difficult part till like today? Like in 7 months, what you feel? So which was the difficult and like challenging part? I think most challenging part is to stay consistent. Even sometimes you can feel it's maybe hoga ya nahi hoga. To stay consistent, it's a difficult part, and to learn new tools, go into the depth, and adapt with the market. I can say because when we joined, there was no when we joined the institute, so Claude tabhi nahi tha. Then Claude came, so Rise also adapted to it. They gave us the sessions. So I think the most difficult part would say मुझे भी giving mocks थोड़ा डर लगता था, but the way Rise helped to give multiple mocks, so मेरा वो डर चला गया, and I became confident in giving the interview, you can say. Great. So जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए. इट इज लाइक आई पर्सनली ऑब्जर्व देयर आर 2-3 इंटरव्यूज विच इज लाइक ऑलमोस्ट क्रैक हो गए. वी आर वेटिंग फॉर ऑफर एंड लाइक पोजीशन वेंट ऑन होल्ड. Correct. सो लाइक कितना टाइम लगा जब हमारा एक्चुअल राइस का इंटरनल मॉक क्लियर हुआ and उसके बाद हम मार्केट में गए. सो कितना टाइम टोटल आपको लगा टू क्रैक दैट, और हाउ वाज द इंटरव्यू फ्लो, प्लीज वो भी आप बताइए. Sure. So basically once I cleared the mock, हमने जब CV and all हमारा डेवलप किया, मार्केट में गए, तो it's been 1.5 months now from there to here that I have been placed. And वो जो इंटरव्यू था, first interview that I got scheduled was you can say around 3 weeks back.
सो यस, सो वहाँ का ऐसा था कि फर्स्ट एचआर ने ही मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। सो लाइक उनका कि आपका करंट पैकेज कितना है, एक्सपेक्टेशन कितना है, हाउ फास्ट यू कैन ज्वाइन, दिस इज लाइक देयर फेवरेट क्वेश्चन कि आप कब कब से ज्वाइन कर सकते हो, क्या आप इमीडिएटली कर सकते हो, एंड टेल मी अबाउट टूल्स यू नो। सो ये उनके मेजर कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एचआर के, जो मैंने नोटिस किए। एंड देन व्हेन दे लाइक मी, दे कॉल मी फॉर अ टेक्निकल राउंड। सो वहाँ पे आई मेट विद द मैनेजर, एंड देन उन्होंने मुझे बेसिकली 50% ऑफ जो मेरा इंटरव्यू था, इट वाज ऑन प्रोजेक्ट, लाइक व्हाट प्रोजेक्ट यू डिड, कैसे आपने बिल्ड किया, व्हाट केपीआईज यू यूज, हाउ डिड यू बिल्ड द डैशबोर्ड। तो ये सारे मेजर क्वेश्चंस, हाउ डिड यू हैंडल रो लेवल सिक्योरिटी, तो ये सब उन्होंने पूछा। एंड सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, लाइक देयर डोमेन वाज इनटू हॉस्पिटल, लाइक उनको हॉस्पिटल्स उनके क्लाइंट है, तो उससे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे एक दो। एंड इवेंचुअली फॉर 2 weeks आई डिडंट हर्ड एनीथिंग, सो आई वाज लाइक यार नो, आई थिंक ये तो नहीं होगा। एंड सडनली मुझे कॉल आया कि यस, यू हैव बीन सेलेक्टेड, एंड सैलरी डिस्कशन वाज गोइंग टू बी देयर, बट इट इवेंचुअली डिडंट हैपन एंड इट वेंट ऑन होल्ड। सो मैं थोड़ा स्टार्टिंग आई वाज रियली हैप्पी, आई आल्सो टोल्ड सर कि हाँ सर हो गया फाइनली, बट eventually I was sad for 1 to 2 days, but ठीक है, I started applying again. So yeah, that's how my first Right. interview flow was. So I think client भी clearly mention किया offer में कि your client is Reliance and you Correct. will be gonna work for the Reliance healthcare department. So that is great. Great. You will be learning like next level. So I also want like see the SQL part is too vast. Power BI part is too vast because it is a major portion holder in any analytics part. So how do you prepare for this end-to-end syllabus? Because I feel ये धीरे धीरे ना पहाड़ बन जाता है. Correct. जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ है जो कुछ पास कैंडिडेट्स भी होंगे यहाँ पे, तो उनको लगता होगा कि यार अभी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, रोज जब भी लेक्चर होता है तो इतना सारा पढ़ा देते हैं, वो कैसे, तो आपने वो कैसे ओवरकम किया कि प्रिपरेशन का फेस कैसा था और हाउ डू यू प्रिपेयर स्मार्टली? और Smart. हाँ प्लीज. Okay, so basically I was a little consistent from starting only, because you can see अगर आज आपको पढ़ा है, so I was like आज ही करना है। ज़्यादा डिले हो गया तो यस, जैसे आपने बोला वो पहाड़ बनते जाता है, so ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी you give 2 hours a day, इट्स स्टिल इनफ कि हाँ आप स्लोली स्लोली उसको ग्रास्प करते जाते हैं। देन आपके और अगर लैंग्वेज ऐड हो रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग आई थिंक आई डिड वाज, जैसे ही हमारा पावर बीआई स्किल हुआ एंड डे टू डे मैंने प्रैक्टिस किया उसको, मैंने हैकर रैंक पे भी थोड़ा एसक्यूएल मीडियम लेवल पिक कर दिया, सो दैट मेरा थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए। यूट्यूब से थोड़े प्रोजेक्ट्स भी किए मैंने, सो दैट मैं रिलेवेंट रह सकूं कि क्या चल रहा है क्लासेस में यहाँ पे। एंड देन बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि अब 2 लैंग्वेज तो सीख लिए, विच इज मेन इनटू द डेटा एनालिटिक्स में अगर मुझे एंट्री करनी है। सो आई जस्ट आस्क्ड वैष्णवी मैम की क्या हम मॉक्स चालू कर सकते हैं, so that हम मार्केट में जा सके। सो आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स आफ्टर डूइंग 2 लैंग्वेजेस ओनली। सो ऐसा ना हो कि हम सीखते ही बैठ रहे हैं एंड प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। सो वाइल गिविंग मॉक्स इट हेल्प मी पावर बीआई स्किल और स्ट्रांग होने, एंड साइड बाय साइड पाइथन भी चल रहा था हमारा। सो दैट्स हाउ आई हैंडल कि यार कंसिस्टेंट तो रहना ही है, वीकेंड में नहीं क्या ठीक है, बट एवरीडे 1 से 2 घंटा आपको देना है, सो दैट वो पहाड़ ना बने एंड आप गिव अप ना कर दो कि यार अब कैसे होगा ये मैंने बहुत जनों का क्वेश्चन देखा कि सर मेरा स्टार्ट किया मैंने और सब ब्रेक आ गया, फैमिली का इशू था, ये था वो था, सबका प्रॉब्लम है यार, ठीक है, सबका प्रॉब्लम है. इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप आई थिंक सर वो थोड़ा प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है कि कुछ चीजें साइड में रखे, जब ये फेज आता है तो यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट मोर प्रायोरिटी टू दिस, तो वो हो जाता है, आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। राइट राइट. आई वाज आल्सो लाइक जो कैंडिडेट अभी वर्किंग है उनसे मैं कुछ कैंडिडेट से बात कर पाया, कुछ कैंडिडेट का फीडबैक ले पाया, तो उनका टाइम का ही मेजर कंस्ट्रेंट है, और सैटरडे संडे में भी वो इंटरव्यू देंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे या क्या कैसा उनका प्रिपरेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं. सो व्हाट इज लाइक बेस्ट सजेशन यू कैन लाइक, उनके लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि वो उनका बेस्ट पॉसिबल प्रिपेयर वो कर पाए? ओके, सो बेसिकली वंस जो अगर हम राइज इंस्टीट्यूट में है और मैंने ये नोटिस किया कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, हम नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम बुक्स में ढूंढते ही बैठे हैं कि हमारा इंटरव्यू आ रहा है, मॉक आ रहा है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज डॉक्यूमेंट करना, थोड़ा मैंने स्टार्ट किया, डैक्स फंक्शंस थोड़े डॉक्यूमेंट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट करना, रिलेवेंट क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट करके फ्रेम करके रखना, सो दैट मैं इजीली एक्सेसिबल हो मेरे लिए और मैं इजीली कहीं पे भी पढ़ पाऊँ, जहाँ पे अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो मैं थोड़ा रेफर कर पाऊँ। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी मेहनत लगती है डॉक्यूमेंट करने में, बट बाद में बहुत काम आती है। और जो मॉक्स होते हैं यहाँ पे आई थिंक ओवर द 3 to 4 weeks मैंने मॉक दिया, सो आई डॉक्यूमेंटेड देम, क्या क्वेश्चंस है, क्या उसके आंसर्स है। सो आई थिंक अगर एक बार मॉक्स हो गए और हमारा इंटरव्यू फेज जब चालू होता है, टू बी रेलेवेंट
ऐसा है कि एचआर को कॉल आया तो उनको अगले दिन ही कैंडिडेट का इंटरव्यू चाहिए होता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में ही पढ़ के पूरा पावर बी आई एसक्यूएल पाइथन दे दो। सो रोज अगर आप 1 घंटा भी करते हो, आपका इंट्रोडक्शन ये तो कंपलसरी है कि इंट्रोडो एंड प्रोजेक्ट ये हाफ एन आवर लगता है, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो, एंड जस्ट एनी मॉक आप दिन में एक मॉक पढ़ लो तो यू आर रिलेवेंट, एंड अपने आप इंटरव्यू के टाइम अगर अगले दिन ही इंटरव्यू है, आप रोज ही 1 घंटा कर रहे हो तो वो आपको कोई प्रेशर ही नहीं आता इतना कि हाँ मेरा कल इंटरव्यू है। आप इजिली वो दे पाते हो बिकॉज आप प्रिपेयर्ड हो, आप कंसिस्टेंट हो। सो आई बिलीव स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो बट कंसिस्टेंटली लो, सो दैट आप प्रिपेयर्ड हो वो जब अपॉर्चुनिटी का कॉल आएगा आपको। राइट। तो ये कुछ मतलब एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, क्योंकि अब जैसे विशाल है यार, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि अभी क्या होता है सभी का यार, मैं आई एम नॉट लाइक वांट टू पिन आउट समवन, सबका साइकोलॉजिकल सेम है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमने एक इंटरव्यू दिया या तो हमारा कॉल नहीं आ रहा है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स है, बी ऑनेस्ट। मार्केट हमारा नहीं है, मार्केट में ओपनिंग रहेगी तो डेफिनेटली कॉल्स हमें खुद होके आएंगे, नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। तो इट इज लाइक डिपेंडिंग ऑन मार्केट और बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट अब जब हम मार्केट में जाते हैं और वो कॉल नहीं आता, और वो जो निगेटिविटी माइंड में आती है, हाउ डू वी टैकल दैट निगेटिविटी? कैसे तो आपने कैसे चैलेंज किया, टैकल किया उसको, और बताओ ना उसके बारे में। ओके, आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये सबके साथ ही होता है, इट्स नॉट अ हम्म, स्पेसिफिक पर्सन कि उसके साथ ही हो रहा है एंड ही हैज टू फील बैड। ये सबके साथ आता है। व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक जब मैं मार्केट में गया, मुझे स्टार्टिंग का वीक में सच में कॉल्स आए, 1-2 वीक, बट देन अगेन ऐसा हुआ कि 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता कॉल नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो एक ही कॉल आ रहा है, या कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ये होता है एंड आई ऑल्सो फेल्ट बैड। बट देन हाउ यू इम्प्रूव इट, मैंने सर से कनेक्ट किया, आशीष सर आपसे कनेक्ट किया कि सर कॉल नहीं आ रहा है। सो देन उन्नति मैम ने थोड़ा प्रोफाइल्स में मेरे चेंजेस किए, फिर मैंने ई कॉम का प्रोजेक्ट भी थोड़ा ऐड किया। सो आपको इम्प्रूव करना है, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग पेशेंटली। इफ यू फील बैड, ठीक है, 1 डे 2 डे यू कैन फील बैड, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फेज एंड ट्राई करना है। यू हैव टू ट्राई कि हाँ मैं और क्या कर सकता हूँ, और कंसिस्टेंटली आपको अप्लाई भी करना है। इवन दो यू थिंक यार आई हैव लर्न 2 tools, while I'm learning other tools, you can still keep applying as you have already cleared the mock, you have given a go ahead from the Rise Institute, then आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए, आई फील। सो यस, वो फेज में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सो यस, आई थिंक आप आ सकते हो उससे बाहर। ग्रेट। सो इसमें ना, जैसे कि मैंने खुद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बताया है कि अगर जिस टाइम पे इंटरव्यूज कॉल नहीं आ रहे, अभी वो ना हमारे हाथ में नहीं है। आपका काम है 2-2.5 घंटा अप्लाई करना। हमने जो रिज्यूम फ्लोट किए मार्केट में, वहां से अगर कॉल आ रहा है तो इन्फॉर्म करना। ठीक है, सो वट एवर दीज आर द स्टेप्स वी ऑलवेज यूज टू टेक। सो उसमें जो मेन टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है, उसमें ना आपको अपग्रेड भी करना है। लाइक इंटरव्यूज में बहुत बार फैब्रिक पूछा जा रहा है। आर यू अवेयर अबाउट फैब्रिक? आर यू अवेयर अबाउट, आपने क्या उस पर प्रोजेक्ट बनाया है? क्या आपके पास टाइम है ना? ठीक है। सो ये अपग्रेडिंग वाला पार्ट बहुत सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं। उनको लगता है इंटरव्यू इंटरव्यू आने के बाद करेंगे। ऐसा मत करो। इट इज लाइक जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माइंड, सो दैट आप इंप्रूव कर पाओ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, प्रथमेश आप मुझे ये बताओ ना कि फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इज द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस इन एवरी इंटरव्यू देयर इज लाइक 20% 30% एसक्यूएल पूछा जाता है, 40 टू लाइक 30 to 40% आपका और भी होता है, 10-20% पाइथन आता है, एंड अनदर पार्ट प्रोजेक्ट पार्ट आ गया उसमें रिमेनिंग। सो दिस इज द इंटरव्यू फ्लो। सो हाउ डू यू प्रिपेयर एसक्यूएल, एंड कौन से कॉमन क्वेश्चंस जो आपने देखे कि ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू ये सबसे ज्यादा पूछे गए? एंड हमने अभी डैक्स चालू किया, तो वो डैक्स के बारे में भी बताइए कि हाउ डू वी प्रिपेयर डैक्स। So basically, I'll answer this referring to my interview, which I had at Rigvid Technologies. So basically, उन्होंने पहले तो हमारा एसक्यूएल में जो पूछते हैं कॉमनली कि आपको एसक्यूएल में जॉइंस आता है, इट्स लाइक देयर फेवरेट क्वेश्चंस। मैंने 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में दे हैव आस्क्ड मी यार व्हाट इज जॉइंस, लाइक आपको कौन कौन से टाइप्स के जॉइंस हैं, देन हाउ डू यू डिलीट दैट डुप्लीकेट डेटा, क्या आपको डू यू नो अबाउट सब क्वेरीज, सो डू यू नो सीटी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने फेस किए हैं। And then coming to Power BI, so Power BI में they asked basically like DAX, जैसे आपने बोला कि कैसे टैकल करना है। तो एज आई सेड कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक तो है कि वो नोट डाउन कर ले, एंड सेकंड इज द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन एंड व्हाट DAX you have used in that project, वो आप thoroughly करके जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू आई थिंक विल हेल्प यू टैकल दैट DAX। एंड आजकल यू हैव टू नो ओनली द लॉजिक, आपको कोई वहाँ पे DAX पूरा एग्जैक्टली लिखने नहीं बोलता है। नो वन आस्क्स अस टू राइट एग्जैक्टली, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द लॉजिक कि हम हाउ कैन वी अप्लाई दिस एंड कैसे इससे सोल्यूशन निकलेगा। एंड as per my experience, they never ask very complex DAX. बहुत they ask very basic, like how, what is SUMX, what is calculate function, what are time intelligence का, how do you calculate MOM. So they ask like very basic questions. So that fear is like psychological, to be honest, कि क्या पूछ लेंगे, but they ask like basic and intermediate only. Okay. ग्रेट ग्रेट।
So thank you so much Prathamesh, it was great like to have you in Rise, and आपका जो जर्नी था इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि भाई बहुत निगेटिविटी आती है, हमें टेंशन भी होता है। सबसे ज्यादा टेंशन तो तब होता है कि हमें हमारा लास्ट वर्किंग डे पता है और अब उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं है। Yeah. और फिर हमें वो सब हैंडल करना है, प्रेशर भी है, फैमिली भी है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वाज नेवर अ स्टार्ट, इट इज अ जर्नी। आपको यहाँ से कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू ग्रो करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, डेफिनेटली द होल राइज विल लाइक सपोर्ट यू डेफिनेटली। एंड वी आर ऑल्सो ओपन फॉर Q&A, लाइक अब सभी जिस किसी को भी प्रथमेश के साथ बात करना है, प्लीज प्लीज विशाल, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। So what interviewer aspects like basic if we are saying like we are going 3 years or 4 years of experience, so what their mindset, what they are expecting to the people generally, I mean like minimum should be this into the, I mean like Power BI you can say, or SQL you can say, uh, you can Okay. understand like something question what I'm I understood your question. So basically, it depends on what their requirement is. But what matters more is how much do you know the tool rather than the domain itself. So some companies are specific, but the where I gave my interview, so it was more like how much good your understanding is in the Power BI itself. So that really helps कि आपको deep थोड़ा सा knowledge है एक के बारे में. And they also wanted someone who knows SAP, who knows HANA, who knows Databricks, but it was not possible. Like एक दिन में इतना सब सीखना क्रिटिकल इंटरव्यू. So I just basic brush up देखा मैंने what does Databricks do, what is SAP, and I told them that I know what this is, but I don't have any hands-on experience. So because if you exaggerate anything, they catch you like this. So it's better कि आपने जो किया है slowly उसको upgrade करो, and in interview you be authentic, and do two domains of project will be enough to and best thing I did was add Claude AI in my project, and खुद से वो करके थोड़ा बताना कि how I how this helped me in my project. So yes, it helps really to land a good impression. what their expectations in terms of SQL, like if we can say like generally I have given some interview for the database, so they are giving the optimization queries and like add indexes and kind of those. Obviously, this is the database side, so this would be more expected for the people. I mean, like interviewer. But here, what their expectation in terms of the practical thing, what they are expecting, like Okay, so if you're applying for a Power BI developer, so like I was doing, so I was because I was where I was more confident in Power BI, so I was applying for that only. Here, their expectation is how much do you know in and out about Power BI? Like, do you know about Power BI services? Do you understand the basic concepts of data modeling and how DAX works? What is row context, filter context? What is incremental refresh? So these kind of things they check if you're going as a 2 to 3 years of experience. So I believe it's more intermediate level, and they try to check how much understanding do you have. So that's it. And yeah, so my question is actually about this role which you have been selected for. So when we say that we are like applying for a data analyst job, so we are getting a combination of every product, right? Like Correct. be it Excel, Power BI, and this. So what makes a difference with this Power BI developer? And like, does it also contains question related to Python or like those Matplotlib, NumPy, Pandas, like this sort of questions? Do they explore? Understood. So basically, see, it totally depends on what their JD is, like what their requirement is. So the first interview that I gave, they wanted someone to have knowledge in Power BI and SQL both. So they asked me Mhm. questions related to these two tools majorly. And the second one that I gave, it was purely a Power BI developer role. So Mhm. there was very less SQL part and more of Power BI. So it depends what you're applying for. If they want Okay. someone to know about Python, then surely they will ask about Python. They will ask about Azure Data Factory. Depends what you're applying for, and what their JD demands. रमेश, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे सर ने हमको डेक्स का पढ़ा है क्यूरीज, तो मतलब बहुत सारी क्यूरीज थी, तो आपने कौन सी याद की उसमें, मतलब ओके, सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें दिए गए थे. तो दैट इज व्हाट आई स्टडीड फॉर. इट वाज अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस. मेजरली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि द प्रोजेक्ट दैट यू विल बी बिल्डिंग इन योर कोर्स, उसमें व्हाट डैक्स यू आर यूजिंग, दैट यू हैव टू बी थरो. सो व्हाट आई कैन से इज आई यूज्ड कैलकुलेट फंक्शंस. ऑल फंक्शन हमने जो यूज किया है वो मेजरली यूज किया था. देन हाउ टू बिल्ड योर ट्रेंड मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर.
उससे रिलेटेड डैक्स हम कैसे कर सकते हैं, तो टाइम इंटेलिजेंस एंड टेबल रिलेटेड फंक्शन, जैसे कि हाउ टू रिलेटेड फंक्शन हो गया हमारा, लुकअप वैल्यू हो गई। सो ये कॉमन डैक्स है जो हमें पूछे जाते हैं वहाँ पे, एंड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। यस। को आपको इसमें हार्ड पार्ट कौन सा लगा पावर बीआई में? पावर बीआई में हार्ड पार्ट, यार हम बोल सकते हैं कि जो कंटेक्स्ट ट्रांजिशंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आती थी, बट इवेंचुअली जब हाथ बैठ जाते हैं, हम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं। एंड मुझे पावर बीआई सर्विसेज भी थोड़ा हार्ड लग रहा था स्टार्टिंग में, हाउ टू सेट अप दी रो लेवल सिक्योरिटी स्टफ एंड ऑल, एंड ये शेड्यूल रिफ्रेश सेटअप करना गेटवेज का, सो आई थिंक वो थोड़ा हार्ड था, but eventually कर करके got used to it. Yeah, Sir, hard. I'm a fresher, as you know. So okay. So in your opinion, like which path is better, data analytics or Power BI development? both the tool are same, ठीक है? as Prathamesh already told, it totally depends on the requirement. Okay, designate वो सब designation होता है, ठीक है? पावर बीआई डेवलपर या इंजीनियर, सॉफ्टवेयर जी इंजीनियर, IT consultant, Okay. but everything is already specified in the JD, job description. If in Okay. JD they are clearly mentions the key requirement is Python, Power BI, and SQL, so you need to be aware about those three tools. And if they are Okay. okay with the Power BI only, they still ask Power BI plus SQL. सो आई होप सबको सबके डाउट्स क्लियर हो गए और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इंटरव्यूज के, ठीक है? सो थैंक यू सो मच प्रथमेश, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, बिकॉज दिस इज नेवर एंड। अभी तो जर्नी चालू हुई है, हमें अंदर भी बहुत सारी चीजें फेस करनी है, बट द एक ही चीज जो कि मेरा सजेशन रहेगा एट द स्टार्ट, लाइक वर्क फ्रॉम द डे वन, लाइक आपको ऐसा काम नहीं भी मिला तो हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजर, HR, द टीम, बिकॉज इट्स योर फैमिली नाउ, ठीक है? वो आपकी फैमिली है, कंपनी आपको पे कर रही है, तो बस काम रिलेटेड नहीं होना चाहिए रिलेशंस, ठीक है? सो डू योर लेवल बेस्ट। आपको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया तो हमें वहाँ पे चमकना है, वी नीड टू शाइन देयर, सो Sure, sir. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी एंड तक रुके, 1 घंटा लेक्चर देन और 40-50 मिनट्स का डिस्कशन, बट हाँ, दिस डिस्कशन वॉज इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीजें समझी ना यार, मतलब क्या पूछते हैं, सच में इतना टफ है क्या, क्या मेरा होगा? तो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।